Very good. I take this opportunity to greet and thank the Vice Chancellor of Keech University, Shri P.P. Mathur ji, Deputy Commissioner of Bhubaneswar region, Shri A.V.L. J. Rao ji, Assistant Commissioners of this region, Regional Director NIOS, Mr. Rao ji, the Director Sports Keech, Mr. Gaganand Das ji, all the contingent managers, escorting teachers of all the organizing regions, the organizing team of Keech and KVS, players of the meet who made this tournament a success. My dear friends, you are now going with a very, very big experience. Whether you won or you lost is very, very crucial today. But after a year or so, that will be not that so important. Because each year and each month, you will play a game, lose some, win some, but always learn heavily. My dear friends, Kendriya Vidyalaya Sangathan looks towards you for the future end of the bankruptcy of medals in Olympic Games, in Commonwealth Games that India has to sustain. A country of 125 crores cannot just get satisfied with one silver and a few bronze in Olympics. We deserve more. And who will give us more? Only you. The generation now will only take part in Olympics in 2020, 2024 and onwards. And we hope we will get the medals from you. Kendriya Vidyalaya Sangathan is trying hard to concentrate on some games which have more Olympic prospects. And soon you will see we will build up infrastructure for those games. We have so many targets to ensure good congenial atmosphere of sports and games in Kendriya Vidyalayas, like infrastructure development, systemic reforms, incentives to excellence, and mentoring, coaching, and exposing the sports-loving children. This 47th KBS National Sports Meet is going to end close today. We had a 1 month long games at the national level in 6 venues, which started in mid-September. And now, mid-October, we are going to say goodbye for the next year. You know, sports and games are more natural than academics. तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि खेल कूद हमारी प्रकृति से ज्यादा करीब है, यहाँ तक कि लिखने पढ़ने के मुकाबले में भी. God has not made for writing. We have to write. Because in civilization, we are at a very, very advanced stage. But God has made us to run, jump, aim, hunt, and play. And that's why you are doing a very natural job while you play. My dear friends, if you really are a good player, if you really are a very good sports-loving person, then I will put some 12 conditions for that. एक एक करके देखना कि क्या तुम में ये गुण डेवलप हो रहे हैं. अगर हो रहे हैं तो वो किस अवस्था में है. जब वो अपनी अंतिम अवस्था के आसपास पहुंचेगा, तब तुम केवल एक अच्छा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी बनोगे. सबसे पहला लक्षण, नो योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. आप अपनी मजबूती, कहाँ आप मजबूत हैं, कहाँ आप कमजोर हैं, कौन से आपके पास अवसर है और कौन से आपके पास खतरे हैं. जब आप इनको जानना सीखेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा खिलाड़ी बनेंगे. जरूरी नहीं है कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं, जरूरी है कि कौन सा खेल आप स्वाभाविक रूप से खेल रहे हैं. कौन सा खेल खेलते समय आपको एक स्वतःस्फूर्त आनंद मिलता है, कौन सा खेल खेलते समय आप सबसे बेहतरीन खेल खेल रहे होते हैं.
कोई नहीं कहेगा कि आप फुटबॉल ही खेलो या क्रिकेट ही खेलो या हॉकी ही खेलो। जो खेल आप सबसे बेहतर खेल सकते हो उस खेल को अपनाओ। 8वीं तक या मैं कहूँ कि 10वीं तक हर खेल का आनंद लो। धीरे धीरे तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खेल कौन सा है। दूसरा लक्षण, क्या आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है या प्रैक्टिस से घबराते हैं? क्या आपके अंदर धैर्य की कमी है, वेट करते हैं, या आप इम्पैशेंट हैं? आप अध्यवसाय परसिवियरेंस है कि नहीं, लगातार मेहनत करने की आपके अंदर क्षमता है कि नहीं? तीसरा, अपने आप को संतुलित रखना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि एक अच्छे योगी की पहचान है जो सुख में भी और दुख में भी एक जैसा ही रहे, लाभ हो और हानि हो एक जैसा ही रहे। जब आप जीत जाएं तो बहुत ज्यादा बोली करने की अपने हारी हुई टीम को जरूरत नहीं है। जब आप हार जाएं बहुत अधिक निराश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई अंतिम मैच या अंतिम लड़ाई नहीं है। इसलिए संतुलन, बैलेंस, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, घर, स्कूल, अपने दोस्त, मोबाइल, सिनेमा, सब में संतुलन बना के रखना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र को आपने जरूरत से ज्यादा तरजीह दी उसकी वजह से बाकी चीजों में आप पीछे चले जाएंगे और कई ऐसी चीजें होंगी जो क्रुशियल होंगी। आप बहुत अच्छा खेल के अगर +2 में फेल हो जाएंगे तो खेल भी आपसे छूट जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ेंगे कि बीमार हो जाएंगे तो आपकी पढ़ाई भी आपसे छूट जाएगी। इसलिए सबको संतुलित रख के आपको चलना पड़ेगा। 5वां लक्षण है एम, प्रैक्टिस, मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड फॉलो अप। लक्ष्य रखिए, प्रैक्टिस करिए, देखते रहिए कि हम कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। 6वां लक्षण है टीम स्पिरिट, टीम बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। एक खिलाड़ी गेंद लेके हमेशा आगे बढ़ेगा और दूसरे खिलाड़ी को पास नहीं देगा, वो टीम निश्चित रूप से हारेगी। अगर जीतने पर आप स्वयं अपना क्रेडिट लेंगे और हारने पर किसी और को इसके जिम्मेदार बनाएंगे तो आप कभी अच्छी टीम नहीं बना सकते। कम्युनिकेशन, खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कल के भी वॉलीबॉल में मुझे दिखा कि जिस वॉलीबॉल टीम ने फाइनल मैच जीता, उनका कम्युनिकेशन जो सिल्वर वाले थे उनसे बेहतर था। एक दूसरे की आंखों की भाषा समझना, सही जगह पर सही कम्युनिकेट करना, ये बहुत जरूरी है खेल कूद में। रिस्पेक्ट फॉर ओपोनेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ये अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा। जिसके साथ आप मैच खेल रहे हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके मैच खेलने का कारण है। अगर कोई खिलाड़ी खेले नहीं तो आप किसके साथ खेलेंगे? 25 रीजन से 24 रीजन वाले यहाँ हार के जा रहे होंगे, एक ही रीजन यहाँ गोल्ड लेके आया होगा, लेकिन 24 रीजन की वजह से ही तो आप गोल्ड लेके आ रहे होंगे। अगर दूसरे रीजन खेले ही नहीं तो आप जीतेंगे किससे? वॉक ओवर में किसी भी खिलाड़ी को इंटरेस्ट नहीं होता। बिना मैच खेले जीतना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अपने ओपोनेंट को, अपने राइवल को इज्जत देना सीखिए। अगली, अपने अंपायर्स को और अपने रेफरीज को रिस्पेक्ट दीजिए। हो सकता है एक आध फैसला गलत भी हो जाए, एक आध फैसला जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो, लेकिन रेफरी कितने दबाव में, अंपायर कितने दबाव में काम करता है ये आप तभी समझते हैं जब आप स्वयं रेफरी अंपायर बनते हैं। इसलिए आपको उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। अपील करने की गुंजाइश है तो आप बाद में अपील भी करिए, लेकिन किसी भी तरह के अपने हाव भाव से अंपायर के प्रति कोई रोष या कोई अशिष्टता नहीं दिखानी चाहिए। फिर 10वीं जो बात है वो ये है कि क्या आप हर एक मैच को एक नया मैच मान सकते हैं? पिछली बातें भूल जाइए। इस मैच में हमने हरा दिया था, पिछले वाले मैच में कोई कारण नहीं है कि इस मैच में आप हारा ही देंगे। उस मैच में आप हार गए थे, कोई कारण नहीं है कि इस बार आप हार ही जाएंगे। हर मैच एक नया मैच होता है, हर दिन एक नया दिन होता है खिलाड़ी के दिमाग में। 11वां, डोंट कॉपी, इवॉल्व। कभी भी किसी और खिलाड़ी की कॉपी मत करिए, इससे आपकी अपनी जो स्वाभाविक क्षमता है वो नष्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, सभी महान खिलाड़ी अपने तरीके से अलग ढंग से खेलते हैं। पेले जैसा मैराडोना नहीं खेलता, न गावस्कर जैसा कपिल देव खेलते थे।
न कपिल देव जैसा धोनी खेलते, न धोनी जैसा विराट कोहली खेलते। हर एक की अपनी एक आइकॉनिक स्टाइल होती है, हर एक अपना अपना हैबिट स्वयं विकसित करता है। वो चाहे स्प्रिंटर्स हो, चाहे लॉन्ग जंपर्स हो, चाहे हॉकी खिलाड़ी, अपना अपना स्टाइल, अपनी अपनी विशिष्टता विकसित करिए। और सबसे आखिरी है, लाइफ इज ए गेम बट नो गेम इज लाइफ। कोई भी खेल जिंदगी से बड़ी नहीं है, और वो खेल है उसमें आप हार जाएं तब भी जिंदगी है, जीत जाएं तब भी जिंदगी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप उसमें जीते या हारे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उससे सबक क्या लिया, क्योंकि आगे वाली लड़ाई और मुश्किल होने वाली है। इसलिए जिन्होंने यहाँ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीते, वो निश्चित रूप से बधाई के हकदार है। आपकी मेहनत रंग लाई, आपने बहुत मेहनत किया है तभी आप इस मुकाम पे पहुंचे। लेकिन जिन्हें गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज नहीं मिला, उन्होंने कोई कम काम यहाँ नहीं किया, उन्होंने मेहनत कम नहीं किया, समय उस दिन उनका साथ नहीं दे पाया। हो सकता है अगली बार और जोश से आएंगे और आपके लिए और बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी करें। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए याद रखना, निराश नहीं होना। ये जिंदगी सबसे बड़ी सौगात है, इसको समझना। आने वाले दिन, आने वाला समय, ये पूरा देश आपका इंतजार कर रहा है कि आप अपने आप को किस तरह से ढालेंगे और वो कौन सा काम चुनेंगे जो देश को आपके ऊपर गौरव करवाएगा। इसलिए दो पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक गीत सुनोगे? सुनोगे गीत? एक निराशा लाख सहारे, एक अंधेरा लाख सितारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है वो जीवन से हारे। एक अकेला लाख सहारे, एक निराशा लाख सितारे, सबसे बड़ी सौगात है जीवन, नादां है वो जीवन से हारे। एक अकेला लाख सहारे। धन्यवाद।